Welcome students. In this chapter we will learn about the topic displacement reaction and double displacement reaction. These reactions are parts of type of chemical reaction. In previous video we have learned about combination reaction and decomposition reaction. So in this video we will learn about displacement reaction. Then first question is that what is displacement reaction? Then displacement reaction can take square. Then AB plus C is known equal to CB plus A. It can be written in the form of AB plus C, CB plus A tends to. Then what is AB? Compound of less reactive element. Compound of less reactive element. C, hide more reactive element. More reactive element. CB, compound of high reactive element plus less reactive element. Displacement reaction can be written in the form. It means the aqueous solution of less reactive compound of less reactive element react with more reactive element, it form compound of high reactive element and displace less reactive element. As for example, CuSO4, that is copper sulfate, plus iron, it is in the form of solid. FeSO4 plus copper. This is an example of displacement reaction. कॉपर सल्फेट ठीक, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें एक आयरन का स्ट्रिप डालते हैं. जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में आयरन का हम स्ट्रिप डालते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है द प्रोडक्ट इज फेरस सल्फेट एंड कॉपर. कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रल के नाम से जानते हैं और इसका कलर जो है ब्लू होता है. आयरन का कलर जो है ग्रे कलर का होता है और जब फेरस सल्फेट बनता है तो फेरस सल्फेट का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है. फेरस सल्फेट जो है एक्वस फॉर्म में होगा और ये कॉपर जो है रेड ब्राउन आयरन स्ट्रिप के ऊपर जो है डिपॉजिट हो जाता है. Then what happen in this reaction? In this reaction, firstly copper sulfate dissociate. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो टूटता है दो पार्ट में, Cu2 प्लस एंड SO4 माइनस. एंड iron is more reactive than copper, so
Iron displaces copper and form ferrous sulfate. Its color becomes green. और ये जो आयरन का स्ट्रिप है, इसके ऊपर जो ये कॉपर जो यहाँ से डिस्प्लेस होता है वो सॉलिड के रूप में उस पर डिपॉजिट हो जाता है। इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, इसको समझने के लिए हम एक रिएक्टिविटी सीरीज को देखते हैं। एक मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है जिसकी मदद से हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल जो है लेस रिएक्टिव है, जो जिससे कौन किसको डिस्प्लेस करेगा इससे पता चलेगा। सो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। This is the reactivity series of metal. ये सब मेटल है, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं इसका रिएक्टिविटी घटता जा रहा है और ये बीच में एक हाइड्रोजन है जो नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है इसलिए है कि मैक्सिमम जब एसिड वगैरह से रिएक्ट करेगा तो क्या वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, इसको लेकर के अगर हम इस सीरीज को हम याद रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बेहतर ढंग से बना सकते हैं। सो वी कैन सी अनदर एग्जांपल ऑफ displacement reaction. Similarly, copper sulfate react with zinc. The color of copper sulfate is blue. The color of zinc is silver white. It forms, zinc is highly reactive than copper. So it displaces copper and form zinc sulfate and produce displace copper metal. The color of where does this copper deposit? Similarly, copper deposit on zinc metal. It deposit on zinc metal. Now another example, copper chloride plus lead. Copper chloride plus lead. In this reaction it forms lead chloride plus copper. The color of copper chloride is green. These are in the form of aqueous solution. The color of copper chloride is green. Lead bluish gray. तो कॉपर जो है वो लीड से कम रिएक्टिव है। देन यहाँ लीड जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और डिस्प्लेस करके लीड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर होगा। ये जो कॉपर है वो फिर से लीड के ऊपर रेड ब्राउन कलर में डिपॉजिट होगा और एक लीड क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, यहाँ भी एक्वस होगा, लीड क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस हो जाएगा
तो these are the examples of displacement reaction. Now another example, silver nitrate AgNO3. This is colorless. We take an aqueous solution of silver nitrate. सिल्वर नाइट्रेट का aqueous solution लेते हैं और इसमें एक कॉपर का स्ट्रिप डालते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है सिल्वर से आगे है, पहले आता है। इसका मतलब है कि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण वो कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार करेगा, बनाएगा और कॉपर इस पर डिपॉजिट हो, सॉरी सिल्वर जो है कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। सिल्वर नाइट्रेट का जो कलर है वो कलरलेस होता है, जबकि कॉपर नाइट्रेट का कलर जो है कैसा होता है, ब्लू होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब किसी भी एक्वस सॉल्यूशन को लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है का कंपाउंड है और ये कंपाउंड कैसा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट से। लेस रिएक्टिव मींस जिस एलिमेंट से वो रिएक्ट करने जा रहा है उससे उसका एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव है। तो वो जो कंपाउंड बनाता है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड बनाता है, साथ ही वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो दीज आर द, इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कॉमनली सिंगल हिडन होता है और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नाउ second one is double displacement reaction. Second one is double displacement reaction. Double displacement reaction. It can be written in the form AB plus CD, AD plus BC. It means in double displacement reaction, compounds exchange their ions. In double displacement reaction, compound exchange their ion. Generally, not necessary, generally in the double displacement reaction, PPT is formed. जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो इसमें एक ऐसे सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है जो वाटर के साथ इनसोल्यूबल होता है और दैट सबस्टांस इज नोन एज पीपीटी। इसमें किस तरीके से रिएक्शन होता है, तो ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है और एक्वस सॉल्यूशन के बाद एक ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो वाटर के साथ इनसोल्यूबल होता है और एक एक्वस होता है। जो इनसोल्यूबल सबस्टांस होता है उसको हम लोग पीपीटी के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि ये आयन का ब्रेक होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड टूटता है आयन के रूप में और आयन को एक्सचेंज करता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। लाइक सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड भी वाटर के साथ सोल्यूबल है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। तो इनका
आयन के रूप में ये टूटता है Ag प्लस NO3 माइनस, इस तरीके से ये टूटेगा। सिमिलरली Na प्लस एंड Cl माइनस के रूप में इसका आयन टूटेगा, और जो कंपाउंड बनाता है वो एक्सचेंजिंग दियर आयन Ag NO3 के साथ है, Ag चला जाएगा Cl के साथ और सोडियम आ जाएगा NO3 के साथ, एक्सचेंज करेगा आयन, यानी बनाएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट पीपीटी के रूप में होगा। माय डियर स्टूडेंट, वी शुड रिमेंबर इट्स कलर, हम लोग को इसका कलर याद रखना चाहिए, क्वेश्चन में आता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का जब एक्वस सॉल्यूशन लिए, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिए, तो सिल्वर क्लोराइड बनाया व्हाइट पीपीटी के रूप में और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। ये सिल्वर क्लोराइड जो है वाटर के साथ इनसॉल्युबल रहा और व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड BaCl2 react with sodium sulfate Na2SO4, then what will happen? Similarly it break Ba2 plus Cl minus Na प्लस SO4 2 माइनस, ये दोनों एक्वस फॉर्म में है, और एक्वस फॉर्म में है तो सबसे पहले इन दोनों का कंपाउंड आयन के रूप में टूटेगा और वो बनाएगा आयन को एक्सचेंज करके बेरियम सल्फेट बनाएगा प्लस सोडियम क्लोराइड बनाएगा। ये बेरियम सल्फेट जो है व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा, व्हाइट पीपीटी के रूप में होगा, और सोडियम क्लोराइड जो है एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसी तरह सिमिलरली वी कैन सी अनदर एग्जांपल, बेरियम क्लोराइड, it remain in aqueous solution, and copper sulfate, it also remains in aqueous, it forms barium sulfate plus copper chloride, it forms copper chloride। इसका भी कलर जो है बेरियम सल्फेट है, इसका ये पीपीटी के रूप में होगा। बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल होगा, जहां भी बेरियम सल्फेट आएगा वो इनसोल्यूबल होगा, पीपीटी के रूप में बने रहेगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट्री में जितना भी ज्यादा एग्जांपल हो उतना ही बेहतर है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रिमेन इन एक्वस सॉल्यूशन and hydrogen sulfide in gaseous, एक्वस सॉल्यूशन है। और जब एक्वस सॉल्यूशन से किसी भी गैस को लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम पास कराते हैं तो यहाँ भी आयन के रूप में टूटेगा, Cu2 प्लस SO4 2 माइनस H प्लस H2 माइनस के रूप में टूटेगा और बनाएगा कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। ये कॉपर सल्फाइड जो है पीपीटी के रूप में होगा और इसका कलर जो है वो कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्लैक पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। उसी तरह सिमिलरली एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक्वस फॉर्म में है, और जब इसको हम
रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस फॉर्म में होगा। अमोनिया का जो भी साल्ट होगा वो सब का सब जो है एक्वस होता है, सोल्यूबल होता है। और यहाँ भी ये टूटेगा किस रूप में? Al3+Cl NH4 plus OH minus. They will exchange their ion. It forms aluminium hydroxide. It forms aluminium hydroxide AlOH whole 3 and ammonium chloride NH4Cl. NH4Cl जो है वो सोल्यूबल होगा। अमोनियम का जो भी साल्ट होगा वो सोल्यूबल होगा और ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। So my dear students, these are the examples of double displacement reaction. We should remember its color. One more example, last example is that in sodium hydroxide plus HCl, it is aqueous. इसका आयन टूटेगा Na+OH-, इसका भी आयन टूटेगा H+Cl-, and exchange their ion NaCl plus OH and H plus it forms H2O. In this reaction NaCl is not PPT. यहाँ NaCl PPT के रूप में नहीं होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ सोल्यूबल होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है और H2O लिक्विड, ये एक्वस फॉर्म में होता है। जनरली अब प्रश्न है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल होगा, कौन सा कंपाउंड सोल्यूबल नहीं होगा। तो उसके लिए हमको सोल्यूबिलिटी रूल पढ़ना होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में तो यहाँ पर ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 का जो भी ग्रुप 1 से यानी ग्रुप 1 में जो भी मेटल है उससे जो कंपाउंड बनेंगे, जैसे सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है और इससे जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा वो पीपीटी के रूप में नहीं होगा, वो वाटर के साथ सोल्यूबल होगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में जनरली पीपीटी का फॉर्मेशन होता है, जरूरी नहीं है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। So my dear students, I think all of you are able to learn about displacement and double displacement reaction. In next video, we will read about redox reaction and its application. अगले वीडियो में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।